If anyone is telling you something that is working for you, please understand that time is very precious. If any advice from anyone is saving you an attempt, then please go for it. Strategy, ठीक है, and the way of preparation, उसको फिर आप implement करो and you will see the improvement in your marks. This has happened not just with me, with lot of aspirants, है ना, और सबके साथ में there is that barrier that they need to cross. वो जब एक बार cross हो जाएगा आपकी preparation में, you have to remain patient till then. Hello everyone, myself Nishant. Many of you might know me as a mentor at Understand UPSC. In this video, I shall discuss with you my prelims strategy. As you can see my mark sheet over here, in 2023, when the cutoff was 75, I was able to score 44 marks above the UPSC cutoff, which was 119 marks. So in this video, I shall discuss with you what were the things that worked for me, what were the learnings from my initial attempts and the previous failures. What is the purpose of this video right now, you may ask. The purpose is that it is at this point of time that we are moving to the transition to the prelims preparation. We would be making the pivot to prelims right now, and since we are 7 months away from the prelims examination, which is in May 2026, तो उसके लिए you should be very clear about the strategy, the things that you have to keep in mind for the next 7 months, the mistakes that you have to avoid, and the things that you have to focus upon. तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में. उससे पहले मैं आपको 2022 की मार्कशीट अपनी दिखाता हूँ. I missed the cutoff by 4 marks. The cutoff that year was 88 marks, while I got around 84 marks. तो it was a difference of 4 marks, जिसकी वजह से मेरी prelims qualify नहीं हो पाया था. But in the subsequent attempt in 2023, which is considered one of the toughest examination, I qualified it over 44 marks. So there must have been some things that I did right. Okay, यही इस वीडियो का पर्पस है. A lot of students were constantly asking about the same thing. तो इसको थोड़ा break down करते हैं. To begin with, the disclaimer, please understand that whatever I will be sharing with you in this video are the things that worked for me, and these are the reflections from my own journey. So you take them, you try to implement them in your strategy, see the things that are working for you, है ना, अपने strength weaknesses के हिसाब से इसको आप आगे लेके चलिए. ठीक है. So a brief description I've already told you about me. I wasn't able to clear the prelims in the initial attempts. Then the breakthrough came in 2023 when I was able to qualify the prelims examination, and since then there was no looking back, in the sense that I was able to also qualify multiple state PSC exams. For example, I have qualified for the Haryana exam twice, then UP twice, Uttarakhand and Bihar also. Also, I was able to qualify the UP PCS. I was able to get 141 marks this year, as per the tentative answer key that has been released by the commission. So the purpose of this entire narration is that I have developed a certain knack of solving the questions in the prelims examination. Was I born with all these knowledge and aptitude? No. ठीक है, हम सब इनिशियल अटेम्प्ट्स में, इनिशियल फेजेस में स्ट्रगल करते हैं. वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, गेट टू अ सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स, बट देयर इज दैट qualifying, or you can say that level, once we reach there, उसके बाद में there is this snowballing effect, और हम easily with little efforts we can clear the prelims examination. तो what were the prelims, what were the pillars of the preparation जिसकी वजह से I feel a little bit more confident in the prelims examination right now. Starting with the first and the foremost pillar is the PYQs. अब PYQs में आपको सिर्फ PYQs को देख नहीं लेना है. You have to spend time with them. How? You have to understand the themes that are repeated very often. Then the trends, कितना frequently वो repeat हो रहा है. Okay. Then the language and the traps in the questions. So
every examination, be it the state PSC or the UPSC, they will have their own texture and flavor of asking the questions. अभी तो we see the statement type of questions आ रहे हैं, assertion and reasoning वाले questions भी आने लगे हैं GS1 में. But when you look through the papers year on year basis, so you can understand the language and then you can communicate with the examiner and the commission well. तो उस basis पे you will feel more confident in the real examination. Common doubt आता है कि कितने साल के PYQs हम करें. In my suggestion, at least 10 to 15 years के आपको PYQs करके जाने चाहिए. Then the basic content and the subject knowledge. Now this goes without saying. See, you are preparing for one of the toughest examination in the country. So without knowledge तो नहीं होने वाला है. You need to have a certain level of knowledge about the core subjects. अब उसका source जो हो सकता है, it can be any source. Okay, you can pick up any material, but please understand that you have to cover that material cover to cover. पूरा आपको अच्छे से उसको prepare करना है, rather than running behind new material every once in a while. ठीक है? Please I am emphasizing on this again. You don't have to pick up new material every week or every month just to get that feel of preparation कि कुछ तो growth हो रही है. No, that is not a growth. Rather, you are fooling yourself. So pick up few materials, revise them and read them again and again. Develop comfort with the same text. Okay. So then observational and peripheral knowledge. A lot of times there will be things and in the news, in the daily life around you. Okay. Please try to have that questioning attitude and the curiosity. जब आपके पास में वो होगी, then you will see through the developments that are happening. आप उसको एक level deeper जाने की कोशिश करोगे. जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल में when, where, what, why, how. वो उस तरह से अगर आप चीज़ों को देखोगे, then you will figure out that a lot of questions in UPSC are asked from these kind of awareness, general awareness. Okay. Then there was this thing कि notes कैसे बनाने हैं. Do we need notes or not? See, my understanding of having notes is that सबसे पहले समझो कि why do we need notes? Notes होने क्यों चाहिए? For me, I realize that notes मुझे last में time save करेंगे मेरा, और rather than reading the main textbooks, I can quickly go through the content. ठीक है? For you people as well, the story and the relation with the notes must be same. अब क्या होता है, जब हम preparation करते हैं, हम सबसे ज़्यादा एस्थेटिक्स के पीछे भागते हैं, सबसे सुंदर, सबसे प्रिसाइज नोट्स हमारे होने चाहिए. बट वाइल मेकिंग दोज नोट्स वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज़्यादा हमारा टाइम उसमें चला जाता है, बी इट द करंट अफेयर्स के नोट्स या फिर आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स. बट इट इज़ फ्यूटाइल. आप एक हफ्ते नोट्स बनाओ, ओके, देन सी वेदर यू कैन रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स आफ्टर 1 वीक. क्या खुद की हैंडराइटिंग अच्छी भी लग रही है, क्या उसको पढ़ भी पा रहे हो कभी? ठीक है, ये रियलिटी चेक आपको तभी मिल जाएगा. इफ यू आर एबल टू डू इट, गो अहेड. इफ यू आर नॉट, तो फिर कोई फायदा नहीं कि आप दिन के 5-6 घंटे नोट्स बना रहे हो और उन नोट्स को बना रहे हो जो आपके आगे चल के काम नहीं आ पाएंगे या फिर आप उनको नहीं पढ़ पाओगे. सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू? फंक्शनल यूटिलिटी की तरफ जाओ. अगर कुछ चीज़ों के स्पेसिफिक नोट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉमन थीम ऑफ बुद्धिज्म की समिट्स किधर हुई थी, जो देयर वर द 4 सेशंस, है ना, कौन कौन से रूलर्स थे, व्हाट वाज द आउटकम, ऑल दोस थिंग्स. मेक ए टेबुलर फॉर्मेट, स्टिक इट ऑन द वॉल्स, या फिर जो आपके नोट्स आप यूज करते हो उधर आप ऐड कर दो. ठीक है, ये आप कर सकते हो. अदरवाइज आउटसोर्स द थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एट अंडरस्टैंड यूपीएससी द टीम प्रोवाइड्स यू विद गुड ब्लू बुक्स. ठीक है, तो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यू गेट द ब्लू बुक्स, आप उससे रिवाइज कर लो. दे सर्व एज अ नोट्स. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उसके आपको फिर से नोट्स बनाने हैं. द सेम गोज फॉर मैगजीन्स, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती हैं. सो यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स आउट ऑफ द मैगजीन्स, दे आर ऑलरेडी इन द नोट्स फॉर्मेट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नोट्स एंड एवरीथिंग. द फोकस शुड बी ऑन इंटरनलाइजेशन. कोशिश ज़्यादा करो कि हम याद करें और मेमोराइज करें चीज़ों को, बिकॉज इन द रियल एग्जामिनेशन इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज इन योर ब्रेन that will help you, not the information which is in your notes. तो ये एक मेरा लेसन था
इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स आई ऑल्सो ट्राई टू मेक वेरी गुड नोट्स, बहुत कोशिश करी नोट्स के लिए, बट वॉट आई एंडेड अप वॉज कि मेरे पास एक फाइल और रजिस्टर हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू रिवाइज देम, तो उसका क्या पर्पस है फिर? तो दिस इज द लर्निंग। अब यही चीज़ आपको सीखनी है ना, ये चीज़ आपको सीखनी है कि आप दूसरों की गलती से सीखो एंड नॉट इम्प्लीमेंट इन योर ओन प्रिपरेशन, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी स्पेंड ईयर्स इन टू द प्रिपरेशन। मेरे भी बहुत सारे साल बर्बाद हुए हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना ह्यूमन रिसोर्स नेशन के बेटर वेलफेयर में लगाओ रादर देन स्पेंडिंग टाइम इन द प्रिपरेशन। सो दिस इज वन ऑफ द मैसेज फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो अब जैसे ब्लू बुक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हु वाज मेकिंग ब्लू बुक्स एट अंडरस्टैंड यूपीएससी? ठीक है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट ही हैज क्वालिफाइड दिस ईयर बाय द रिजर्व लिस्ट। ठीक है, तो रोहित सर क्वालिफाइड दिस ईयर। अब सोचो रोहित सर ने बनाया है, अपनी एनर्जी अपनी नॉलेज उसमें पुट करी है। द सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। वो निधि मैम ने बनाई है, विच इज लाइक शी इज समवन हु हैज क्वालिफाइड 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स। अब अगर मुझे अगले साल पेपर देना है सपोज, ठीक है, तो क्यों ना मैं उनकी जो बेस्ट एफर्ट्स है उसको यूटिलाइज करूं रादर देन माई सेल्फ डूइंग द हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए लिखा था डोंट री इन्वेंट द व्हील, इफ समथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू फॉर योर बेटरमेंट, उसको यूटिलाइज करो, टेक द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। दिस applies for current affairs, this applies for notes, this applies for anything else. ठीक है, so if anything that is beneficial, if it is provided to you, then use it. टेस्ट सीरीज और क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए देखो PYQ के क्या काम है। पहला हमको पता लगेगा थीम्स कि थीम्स क्या है, देन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, द नेचर एंड द ट्रैप्स। ये समझ में आया हमें PYQ को देखने के बाद। At no stage PYQs are replaceable. That is a well-known fact. But please understand, you also need a lot of questions to practice apart from the PYQs. तो उसके लिए having a good test series is very very essential. अब देखो टेस्ट सीरीज में I'll elaborate on this fact very much because क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज में सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस, तो हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, and this is a persistent problem with a lot of students. फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, गिव अप करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, राइट? तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट को एक लर्निंग की तरह देखो। आई विल एलैबोरेट इट क्लियरली। देखो सपोज यू गेव द टेस्ट एंड यू मेड मिस्टेक्स, देयर आर 100 क्वेश्चंस इन द टेस्ट, आउट ऑफ विच सपोज यू न्यू 50 क्वेश्चंस वेरी वेल और आपने वो सही हो गए आपके। अनदर 25 क्वेश्चंस यू आंसर्ड देम अप्लाइंग सम लॉजिक, ठीक है, मैड एप्टीट्यूड लगा के आपने सॉल्व किया, बट द रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस यू हैड नो आइडिया अबाउट। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू पिक अप दोज 25 थीम्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप दी क्वेश्चंस मग अप करने से, उसके आंसर्स के नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं है। पिक अप द थीम्स। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अ मल्टीपल नंबर ऑफ थीम्स दैट आई हैव पिक्ड अप फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है, एंशियंट सिटीज, पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। इन द वैली सिविलाइजेशन में व्हाट वाज द सिटी, ऑन विच बैंक इट वाज लोकेटेड, व्हाट वर द फाइंडिंग्स, ठीक है, वहां से क्या एक्सकवेशन में मिले हैं। देन अ परसिस्टेंट थीम अबाउट क्रोनोलॉजी, डायनेस्टी, क्रोनोलॉजी, कैपिटल, रूलर्स, फाउंडर्स, ठीक है, दीज आर द बेसिक स्टफ। इसको ऐसा नहीं कि 4 टेस्ट पढ़ रहे हो और 4 टेस्ट में आपको हर बार यही गलती कर रहे हो, right? If it is happening, then this is something that you need to rectify. No one can help you over here. Similarly for travelers and themes, सबको पता है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर से, the nature of questions will vary. हो सकता है टेबुलर फॉर्मेट में दे दे अगले साल, ओके, जैसे कि ट्रैवलर, देन कंट्री, देन बुक्स एंड द फाइंडिंग्स, और मे बी इन विच लैंग्वेज द बुक वाज रिटन, या हो सकता है कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ले 1 वर्ड में। Okay, so the presentation of the question may vary. This you will practice by the test series, but the content remains the same. कि अब आपको टॉपिक समझ में आ गया कि यार मुझे नहीं समझ में आया मार्को पोलो कब आया, मेगास्थनीज कब आया, फाहिम कब आया, उनके क्या वर्क हैं, उसके कंटेम्प्रेरी रूलर्स क्या हैं, तो प्लीज सिट डाउन, बी पेशेंट और उसको टॉपिक को एंटायरली कवर कर लो। नाउ यू डोंट हैव टू डू PhD इन द टॉपिक कि सैकड़ों आप पढ़ के डालो जो ट्रैवलर्स हैं ऑल। The major ones which are covered in almost all the books, वो आपको
कवर करने हैं. सो दिस व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू, दिस इज द पार्ट फॉर योर knowledge expansion. Okay, once you have done all these things, then you need the right revision, which you must have seen in MAT program as we do the 4-phase revision. So it is not just reading the things once, but multiple times आप उसको पढ़ो so that you get the things into the muscle memory. जितनी बार आप उस कंटेंट को देखोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, in the real examination you will feel familiar. और वो फिर आपकी जो नर्वसनेस है उसको कम करेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट दी क्वेश्चंस राइट. ठीक है. एंड लास्टली जो बिना कुछ कहे जाता है, द राइट गाइडेंस. व्हाई इट इज एसेंशियल? अगेन एज आई टोल्ड यू कि दूसरों की गलती से सीखो. व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू? इफ एनीवन इज टेलिंग यू समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड दैट टाइम इज वेरी प्रेशियस. इफ एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन इज सेविंग यू एन अटेम्प्ट, देन प्लीज गो फॉर इट. है ना? प्लीज उनकी बात सुनो. और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है, यू अप्लाई इट टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जैसे आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आप उसको एनहेंस करो, अगर वीकनेस है तो उसको ओवरकम करो. देन दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल दैट व्हाट इज द माइंडसेट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना, क्योंकि 2023 से पहले आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ऑनेस्टली आई स्टिल एम. ठीक है, अभी भी पेपर देना होगा, उतना ही डर लगेगा. But I feel that in the initial phase, if I can hold my nerves, trust my preparation, then I can do good. Okay, so this is the mindset for the prelims examination. ठीक है, अगर आप अच्छे सही mindset के साथ जाते हो, 50% of the battle is already won over there. तो क्या रहता है कि पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ basics, कुछ mistakes that I made in the initial attempts. I missed by few, जैसे बताया कि मार्क्स से I missed, and in those attempts I OMR मेरी गलत हो गई थी. ठीक है, तो एक डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि कब भरें OMR, फर्स्ट हाफ में या लास्ट में भरें. ठीक है, तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउ इज डू नॉट फिल द OMR इन द इनिशियल 10 to 15 मिनट्स. दैट इज इट. ठीक है, क्योंकि क्या होता है उस टाइम जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वी आर वेरी नर्वस एंड देयर इज द टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक. और मान लो पहला ही बबल आपका गलत हो गया तो फिर यू फील लाइक एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो 10 से 15 मिनट वेट करो, लेट द नर्व सेटल डाउन. ठीक है, उसके बाद में पिक अप द इजी क्वेश्चंस, उसको OMR में फिल कर दो. वंस यू गेट द रिदम, एक बार जब आप रिदम पकड़ लोगे देन यू विल फील कॉन्फिडेंट. एंड एक साथ मत भरो OMR इन द सीरीज कि 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो, बिकॉज इफ गॉड फॉरबिड यू मतलब अगर आप एक भी क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देते हो देन यू माइट गेट द एंटायर 4 to 5 क्वेश्चन का सेट गलत. सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट the OMR filling which you will eventually learn during the prelims test series. Mindset में एक और चीज ये थी कि see there are the 3 types of questions, the easy questions, the medium questions and the tough questions. Easy questions में एम करेंगे कि एक्यूरेसी हमारी हाई हो, जितना ज्यादा एक्यूरेसी आप कर सकते हो इसमें. easy questions are which are directly from the sources which everyone is reading, predictable lines पे क्वेश्चन है, सेम पैटर्न्स पे हैं PYQs के ऊपर, तो वो क्वेश्चन हमें कोशिश करनी है कि सही हो ही हो. ओके, स्टिल देयर विल बी सम सिली मिस्टेक्स दैट विल क्रीप इन. अगर आप बहुत ही लकी हो, सब कुछ सही रहता है उस दिन, देन यू माइट गेट 100% एक्यूरेसी. बट प्लीज अंडरस्टैंड इवन द वेटरन्स ऑफ द वेटरन्स, कितना भी सीनियर हो, कितने भी वेल प्रिपेयर्ड हो, 1-2 सिली मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है, हो जाती है. देन कम्स द मीडियम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. हियर यू नीड बोथ नॉलेज एज वेल एज देयर राइट एप्लीकेशन. तो जैसे एरिस्टोटल बताते हैं फ्रोनेसिस, प्रैक्टिकल विजडम चाहिए वहां पे, नॉट जस्ट नॉलेज. वो काम नहीं आ पाएगी बिकॉज द क्वेश्चंस इटसेल्फ आर इन सच नेचर, स्पेशली इन UPSC, दैट यू हैव टू थिंक अ बिट, you have to pause, you have to think, read the questions very very carefully. If required, read the Hindi translation as well. तो ये करोगे what you also call the intelligent and the logical guessing, which sir teaches through MAD. And to be honest, I also watched a lot of videos of MAD during my 2023 attempt. तो क्योंकि knowledge मेरी in the previous attempts it got consolidated and I learned the application as well. Therefore I saw the boost in the marks in the 2023 attempt. तो ये भी एक major reason और factor रहा था. Then comes the
टफ क्वेश्चंस, ठीक है। टफ क्वेश्चंस आर दोज विच यू हैव नो आइडिया अबाउट, ठीक है। कहाँ से वो पूछे हैं, किस सोर्स से पूछे हैं, यू नेवर नो अबाउट इट, एंड ट्रस्ट मी देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ दिस नेचर। ऐसे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। हो सकता है कि पहला पेज जब आप खोलोगे यूपीएससी का, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी आपकी QCAB, उसका जो जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपको सबसे पहले ही दिख सकता है। बट यू डोंट हैव टू गेट पैनिक, है ना। ये क्वेश्चंस आपके टेम्पर और आपके कंपोजर को टेस्ट करने के लिए पुट किए हैं एग्जामिनर ने, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड द कट ऑफ इज नॉट क्रॉसिंग 50% बैरियर, वी नो इट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। और एक चीज और आपको समझनी चाहिए, दैट आफ्टर डूइंग रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, पुटिंग the efforts honestly, reading all the basic books, covering the current affairs for a decent which is around 1 to 1.5 years, अगर उसके बाद में भी अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपने कभी सुना नहीं उसके बारे में, then it applies for each and every aspirant, ठीक है। नॉर्मल सभी एस्पिरेंट के लिए होगा वो। हो सकता है किसी ने कहीं गलती से वो बुक पढ़ ली हो जिसकी वजह से वो क्वेश्चन उनके जोन में आ गया हो। अदरवाइज इफ यू डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन करेक्टली, योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन won't hamper or get affected. Please understand, your selection depends upon these two category, which is the easy and medium category, and not upon the tough questions. अब tough questions को करेंगे क्या हम छोड़ देंगे उन questions को? Absolutely not. We will attempt them. कैसे करेंगे? We will apply logic, we will apply MAD, eliminate करेंगे। कितना eliminate कर सकते हैं? Max 3, अगर जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, अगर एक को eliminate कर दिया है, ठीक है, go for the other 3, take the risk based upon the number of questions that you have attempted. If you have eliminated the 2 options, then you must take the risk, because इधर आपके 50-50 chances हो जाते हैं। Now, if you get the questions right from this category, एक तो आपके ब्राउनी पॉइंट्स हो गए, एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया, और दूसरा this will also compensate for the silly mistakes which we have done for the easy questions. So this is in general, अगर आप इस प्लान के साथ जाओगे, ठीक है, that I will aim accuracy high in the easy questions, I will aim for getting the medium questions which are the medium category right, ठीक है, और tough questions में देखेंगे जितना maximum हम कर सकते हैं। उसके अलावा even if there are 5 to 10 questions that I have to leave or I have no idea about, doesn't matter, ठीक है। तो ये mentality के साथ में आपको पेपर attempt करना चाहिए, and this is what I did and worked for me, so you can see. बाकी जैसे थीम्स के लिए आई वाज डिस्कसिंग, तो ये कुछ थीम्स होते हैं जो, अब दिस इज वेयर द राइट गाइडेंस कम्स इन। सपोज देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, लास्ट में क्या करें, है ना। एंशिएंट सिटीज फोर्स ये सब बताया मैंने आपको, हिस्ट्री के टर्म्स ग्लॉसरी पढ़ के जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस एम्पायर्स, फॉर एग्जाम्पल मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, देन अगेन द मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के साथ में सी द रेवेन्यू पॉलिसी, जब आप रेवेन्यू पॉलिसीज को पढ़ते हो तो, ठीक है। रिफॉर्म्स के बारे में इन द प्रीवियस लास्ट ईयर एज वेल एज ट्रांसफॉर्म वी डिस्कस्ड, है ना, सेशन में आई रिमेंबर उनको एक साथ में बैठ के पढ़वाया। कैसे? पुलिस के बारे में रिफॉर्म्स कमेटी, इरिगेशन के बारे में जो भी बनी थी, ठीक है, देन एजुकेशन के बारे में, प्रेस के बारे में। सो दीज टॉपिक्स यू शुड प्रिपेयर टुगेदर and in a consolidated manner, एक साथ पढ़ो इसको, so that there's a timeline and you can understand the event as well, ठीक है। It is not just about the factual knowledge. अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, you can interrelate and correlate the themes कि क्या developments उस तरफ चल रहे हैं। Then this is briefly what I could note down quickly. जैसे geography में होता है तो physical features, अंडरस्टैंड यूपीएससी के चैनल पे हैं ऑलरेडी वीडियोस जो सर ने डाली हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर मैपिंग, तो उसमें से आप इसको रेगुलरली देखते रहो। हिल्स हैं, माउंटेन है, रिवर्स हैं, प्लेट्यू, लेक्स, वैली, ठीक है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर, इट इज वैली। तो ये सब देखो, सॉइल्स, द लैक ऑफ मिनरल्स और द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल इन अ पर्टिकुलर सॉइल, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स डज इट सपोर्ट, ठीक है। देन ज्योग्राफिकल फिनोमिना, साइक्लोन्स, रेनफॉल्स, टोर्नेडो, अर्थक्वेक, कैसे उसको मेजर कर रहे हैं, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, क्या सब उसका बेसिक्स है, फॉर्मेशन क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं दैट द लिस्ट आई कैन शेयर विद यू अगेन, बट द लार्जर मैसेज इज दैट
You need both right strategy, ठीक है, and the way of preparation. उसको फिर आप implement करो and you will see the improvement in your marks. This has happened not just with me, with a lot of aspirants, है ना, और सबके साथ में there is that barrier that they need to cross. वो जब एक बार क्रॉस हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में, you have to remain patient till then. एक बार जैसे ही आप उसको क्रॉस करेंगे, then you will see the improvement. So this is all that I wanted to share with you. If you have any other doubts or issues, you can message them, put them in the comments. I will be happy to reply. And if it requires, then I will come up with a separate video. For now, this will be the end. I hope it was helpful for you as you move to the transition for the prelims and mains together. अच्छा, one last point of message for you. जैसे काफ़ी लोगों को ये भी डाउट है कि when to do the transition. Let me see if I have noted down it for you. Okay, so it was noted and I missed it. So the timeline ahead. ठीक है, अभी क्या करें? प्रीलिम्स के लिए पढ़ें ना पढ़ें, कब से पढ़ना शुरू करें? Simple thing is that there is no universal answer for this question. Logically समझो, if a person who has appeared for mains examination of 2025, अब उनको अगर प्रीलिम्स का पेपर देना है 26 वाला, he or she is planning for this. If he or she qualifies for the mains examination, ठीक है, then they will prepare for the interview now. प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ेंगे वो, they will appear for the interviews, ठीक है, hopefully they will get selected. अगर नहीं होते they will get less time और उनको उसी पीरियड में प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो डिफर हो गया ना स्ट्रेटेजी में. इट इज नॉट दैट दे विल ऑल्सो बिगिन फ्रॉम द सेम पॉइंट. देयर विल बी स्टूडेंट्स हु फील दैट मेंस दे दिया है हमने, वी हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स प्रीवियसली बट वी डिड इट बाय नैरो मार्जिन, ठीक है, जैसे कट ऑफ वाज अराउंड 92 दिस ईयर एक्सपेक्टेड. सो इफ यू वर गेटिंग मार्क्स अराउंड 85 to 95, ठीक है, इस जोन में किनारे से हो बिल्कुल, तो हो सकता है कि अभी पिवट कर लो, थोड़ा सा 1-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो प्रीलिम्स के लिए. बट द पीपल हु आर इन टू द जोन, जिनके 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी. दिस गोज विदाउट सेइंग. ओके, अब इसका बैलेंस क्या हो सकता है इन द नेक्स्ट 2 months, विच इज नवंबर. ओके, लेट मी राइट इट इन अ फ्रेश पेज. सो इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, you can prepare for both mains and prelims together. Then from the month of January onwards, you can gradually move to the transition. और फिर as you approach 15th of January or 30th of January or 15th of February, तब आप maybe at some point of time stop or give a pause to the mains preparation and transition fully to the prelims mode. So ऐसे करके आप कर सकते हो. बाकी you are wise enough, ठीक है. This is not a universal strategy. I'm again telling you. You have to choose, be assertive and decisive. ऐसे नहीं करना है कि दोस्त कुछ पढ़ रहा है तो उसको देख के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. You understand your strengths, क्या लैक कर रहा है, is it the optional, is it the GS4, किस चीज़ को ज़्यादा भी emphasis देना है, उसके basis पे you take the call. So these will be my parting words for now. As I told you, if there is anything else that is required from my end, I'll be very happy to help you out. You can always mention that in the comments and let the team know, and if required I'll record another video for the same. For now, this is the end of the video. Thank you very much and all the very best for the preparation ahead. Bye.